ધન્યવાદ ધન્યવાદ. દરેક મિત્રોને નમ્ર વિનંતી કે પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરે. દરેક મિત્રોને નમ્ર વિનંતી પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરે. આપણે પ્રોગ્રામ શરૂ કરીએ. આપ ઘણા સમયથી રાહ જોઈને બેઠેલા છો. ભારત માતા કી વંદે વંદે. ધન્યવાદ. દરેક મિત્રોને નમ્ર વિનંતી કે પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરે. આપણે પ્રોગ્રામની શરૂઆત કરીએ છીએ. દરેક મિત્રોને નમ્ર વિનંતી. આજે આપણે શિક્ષણ સાથે જોડાયેલા શિક્ષકો, પ્લીઝ બધા નીચે બેસી જશો પ્લીઝ. ધન્યવાદ. આપણે પ્રોગ્રામની શરૂઆત કરીએ. શિક્ષક અને પેરેન્ટ્સ સાથેનો સંવાદ છે એ આપણે ટૂંક સમયમાં શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. આપણી વચ્ચે દિલ્હીના યશસ્વી મુખ્યમંત્રી શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી, માનનીય શ્રી ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા, ઈસુદાનભાઈ ગઢવી, મનોજભાઈ સોરઠિયા હાજર છે. એમને તાળીઓના ગળગળાટથી આપણે વધાવી લઈએ. હું આપનો વધારે સમય નહીં લઉં અને આપણે પ્રોગ્રામ શરૂ કરીએ છીએ. પ્રોગ્રામ આપણે સૌપ્રથમ ઈસુદાનભાઈ ગઢવીને નમ્ર વિનંતી કરીશું કે આપણી વચ્ચે આવે અને આપણે બે શબ્દ કહે. માનનીય ઈસુદાનભાઈ. બોલો ભારત માતા કી ઇન્કલાબ. બધાય ગોઠવાઈ જજો અહીંયાથી પણ. માનનીય આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય કન્વીનર, દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અને ગુજરાત અને દેશને જેમની ઉપર ગર્વ છે અને ઉમ્મીદ છે એવા અરવિંદ કેજરીવાલજી, ગોપાલભાઈ, મનોજભાઈ, જીતુભાઈ અને સૌ પેરેન્ટ્સ, વાલીઓ. મિત્રો, આજે આમ આદમી પાર્ટી અને માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજી એક એવા નેતા છે કે જે તમામ વર્ગ સાથે, તમામ લોકો સાથે ચર્ચાઓ કરી રહ્યા છે, વન ટુ વન ડિસ્કશન કરી રહ્યા છે, એમની મુશ્કેલી સમજી રહ્યા છે. તમને આશ્ચર્ય થશે, ગુજરાતમાં 44 લાખ બાળકો પ્રાઇવેટમાં ભણે છે. ગુજરાતમાં 53 લાખ બાળકો છે એ સરકારી શાળામાં ભણે છે. આ 1 કરોડ બાળકો અને એમના વાલીઓની ઉમ્મીદ છે માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજી. મિત્રો, 7 વર્ષ થયા દિલ્હીમાં સરકાર આવી છે. માન્ય 7 વર્ષ છે માત્ર. 7 વર્ષમાં કોઈ ખાનગી શાળાના સંચાલકની તાકાત નથી કે 7 વર્ષમાં ફી વધારો કરી શક્યા હોય. અને અહીંયા 27 વર્ષ થયા. 27 વર્ષમાં એક તો સરકારી શાળા સારી ન રહી અને સરકારી શાળામાં મજબૂરીન ઉઠાવીને ખાનગી શાળામાં બાળકોને આપણે ભણાવી રહ્યા છીએ. હવે ખાનગી શાળામાં તમે વિચાર કરજો, આ વખતે તો તમે અને મેં ફી ભરી દીધી. મુશ્કેલી ત્યાં થાય છે મિત્રો કે ખાનગી શાળામાં દર વર્ષે 10%, 15% બેફામપણે ફી વધારો થાય છે. અરવિંદ કેજરીવાલજી 7 વર્ષ પહેલા સરકાર જ્યારે દિલ્હીમાં રચી ત્યારે એમણે દરેક શાળાનો ઓડિટ કરાવ્યું અને હિન્દુસ્તાનમાં એક એવા મુખ્યમંત્રી છે કે ખાનગી શાળાની ફી જે વધારે લૂંટી હતી એ વિદ્યાર્થીઓને અને વાલીઓને પરત કરાવડાવી. મિત્રો, આપણે કોઈ પણ પક્ષમાં માનતા હોઈએ, હમણાં ભાજપ મોકલાઈ ગયું છે અને ભાજપ વાળાઓ કાન ખોલીને સાંભળી લે કે તમે જે ખાનગી શાળાઓ શરૂ કરીને લૂંટ ચલાવી છે
એ તમને ઓકાવીશું અને શાળામાંથી ફી પાછી અપાવીશું વિદ્યાર્થીઓ. મિત્રો, સંસ્કારી નગરી વડોદરા છે. આજે મારે દુઃખ સાથે કહેવું પડે છે કે વડોદરાની સંસ્કૃતિને ભાજપે કાળો ધબ્બો લગાડ્યો છે. આજે કેટલાક ભાજપના બુચુશિયાઓએ 13 હોલ અરવિંદ કેજરીવાલજી અહીંયા આવી અને તમારા બાળકની શિક્ષણ ફી અને સારું શિક્ષણ ન આપે એટલે ભાજપે આખો ષડયંત્ર રચ્યો ને 13 હોલ કેન્સલ કરાવ્યા. ભાજપ વાળાને કેવું છે કે નાની યાદ આવી ગઈ ને, અને હજી તો આ ટ્રેલર છે. પિક્ચર અભી કાન ખોલીને સાંભળી લે, હું ગુડી ગઈ. તમે વિચાર કરો, વડોદરા એરપોર્ટ ઉપર 40 ભાડેતું મોકલી દીધા. જાઓ. તમે એમ સમજો છો કે કોઈ ઘાસ કાપવા ગુજરાતની જનતા તમને બેસાડી છે? આ કરવા માટે ગુજરાતની જનતા બેસાડી છે? તમારા બાપુજીમાં તાકાત હોય તો શિક્ષણમાં જે 5 વર્ષમાં ફી વધારો કર્યો છે પાછો ખેંચો. મુદ્દાની રાજનીતિ નહીં કરી શકે. પણ મિત્રો, મારે આપને કહેવું છે, એક એક ઘરે પહોંચવાનું છે. આપણે એક એક લોકોને કહેવાનું છે કે જો સરકારી શાળા સારી કરવી છે, થઈ જશે. અને હિન્દુસ્તાનમાં કોઈ એક નેતાને, લોક નેતાને આવડતું તો માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજી છે. તમારો બાળક સારું ભણશે તો જ એનો વિકાસ થશે. હું 2 દિવસ પહેલા હું જોઈ રહ્યો હતો મિત્રો, એક ઓટો ચાલકનો દીકરો આઈઆઈટીમાં એડમિશન લે છે દિલ્હીમાં, અને ભાજપ વાળા અહીંયા પોતાના દીકરાને વિદેશમાં મોકલે, સરકારી શાળામાં શિક્ષણ ન રહેવા દે, અને ઉપરથી એવું કહે કે કેજરીવાલજી તમે અહીંયા ન આવો. હાથ તમારી ઊંઘ ઉડી ગઈ છે, મને ખબર છે. પણ મિત્રો, આ વખતે એક થઈ જવાનું છે. દરેક વાલીએ સોગંદ ખાવાના છે અને ગેરંટી આપીએ છીએ, કોઈ શિક્ષણ ચાલક સંચાલકની તાકાત નથી કે તમને પૂછ્યા વિના ફી વધારી શકે. અને મોટા ભાગની ખાનગી શાળાઓ છે કોની છે? ज्यादातर सर यहाँ पे जो प्राइवेट स्कूलें हैं सब भाजपा वालों की, और इसलिए ये डर गए हैं. 2-3 दिन से मुझे मैसेज मिला है भाजपा वाले खाना नहीं खा पा रहे. आप यहाँ आने वाले थे और पता चला कि पेरेंट्स को मिलने वाले हो, तब से वो कैलकुलेशन लगा रहे हैं कि अपने में कितना लॉस होगा. जो जिस तरह से उन्होंने फीस में लूट मचा रखी है, और इसलिए 13 होल कैंसल करवाए. હું આ હોલના માલિકને લાખ અભિનંદન આપું છું. કોઈના બાપની તાકાત નથી. આ ગુજરાતની સંસ્કૃતિ છે. લુખાગીરી ગુજરાતની સંસ્કૃતિ નથી. ગુંડાગીરી ગુજરાતની સંસ્કૃતિ નથી. ખોટા નારાઓ લગાડવા ગુજરાતની સંસ્કૃતિ નથી. તમારા બાપમાં તાકાત હોય તો 300 યુનિટ વીજળી ફ્રી કરીને આપો. હાલો. હિસાબ અને લડાઈ મુદ્દાની હોવી જોઈએ કે ના હોવી જોઈએ? હોવી જોઈએ કે ના હોવી જોઈએ? તો મિત્રો, વધારે સમય ન લેતા મારી આપ સૌને રિક્વેસ્ટ છે, ભાજપ વાળા અરવિંદજીને, મને ગોપાલભાઈને ખૂબ ગાળો બાંધશે, પણ કોઈએ ભ્રમિત થવાનું નથી. જેટલી ગાળો બાંધે એનો જવાબ મતદાનથી તમારે આપવાનો છે. બોલો, આપશો કે નહીં? આપશો કે નહીં? હાથ ઊંચો કરીને મને કહો એટલે મને ખબર પડે. બોલો, ભારત માતા કી ઇન્કલાબ. ધન્યવાદ ઈસુદાનભાઈ. બરોબર. હવે આપણે આગળ પ્રોગ્રામ ધપાવીએ છીએ, અને હું ગોપાલભાઈને નમ્ર વિનંતી કરું કે જે બી શિક્ષક છે એ પ્રાઇવેટ સ્કૂલના હોય કે સરકારી સ્કૂલના હોય,
અને વાલીઓ એમના જે પ્રશ્ન છે એ ગોપાલભાઈ હવે સાંભળશે અને આગળનો પ્રોગ્રામ આગળ વધારશે. ધન્યવાદ. આજના આ વાલીઓ અને શિક્ષકો સાથેના સંવાદ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત તમામ વાલીઓ, શિક્ષકો, શિક્ષણ, શિક્ષક, વિદ્યાર્થી અને વાલી સાથે નિસ્બત અને લાગણી ધરાવતા સૌ સન્માનનીય નાગરિકોનું હું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું આજના આ કાર્યક્રમમાં. અત્રે ઉપસ્થિત છે માનનીય દિલ્હી સરકારના મુખ્યમંત્રી અને આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય કન્વીનર શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી, અમારા રાષ્ટ્રીય નેતા માનની શ્રી ઈશુદાનભાઈ ગઢવી, અમારા પ્રદેશ મહામંત્રી માનની શ્રી મનોજભાઈ સોરઠિયા અને શિક્ષણ સમિતિના પ્રદેશ પ્રમુખ માનની શ્રી જીતેન્દ્રભાઈ ઉપાધ્યાય, મીડિયા સાથી મિત્રો, પોલીસ આપ તમામ સૌ સાથીઓ, ગુજરાતમાં આમ આદમી પાર્ટીએ અને માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજીએ એક નવી પરંપરાની શરૂઆત કરી છે, સંવાદની. 27 વર્ષોથી આપણે મત આપતા આવ્યા છીએ. ક્યારેક ભાજપને આપ્યો, કોંગ્રેસને આપ્યો, ભાજપને આપ્યો, કોંગ્રેસને, બધાને મત આપ્યા, પણ કોઈએ ક્યારેય આપણી સાથે ઓપન પ્લેટફોર્મ ઉપરથી ચર્ચા કે સંવાદ કરવાનું કોઈને સૂઝ્યું નહીં, કેમ કે એમને આપણી જરૂર નથી. આજે આ ગુજરાતમાં પહેલીવાર એવું બની રહ્યું છે કે કોઈ મુખ્યમંત્રી એક ઓપન માઇક સાથે લોકોની વાત સાંભળે છે. પરંતુ જ્યારે રાજનીતિની અંદર એક નવી શરૂઆત થઈ રહી છે કે જનતાના હાથમાં માઇક હશે, ચીફ મિનિસ્ટર એ માઇકમાંથી બોલાયેલી વાતને સાંભળતા હશે, જનતા અને જનતાના પ્રતિનિધિની વચ્ચે મીડિયાની હાજરીમાં સંવાદ થાય. આ કલ્ચર બહુ સારું છે. આવું આઝાદીના 75 વર્ષ પહેલાં થઈ જવું જોઈતું હતું, પણ અરવિંદ કેજરીવાલજી આ નવા કલ્ચરની શરૂઆત કરી છે. એનાથી ભાજપના પેટમાં તેલ રેડાયું છે અને અરવિંદ કેજરીવાલજી ગુજરાતની જનતા સાથે, વાલીઓ સાથે, શિક્ષકો સાથે વાત ન કરી શકે એટલા માટે ગઈકાલે 13 જેટલા હોલ આ વડોદરા શહેરમાં કેન્સલ કરાવવામાં આવ્યા. જે જગ્યાએ અરવિંદજીની ઇવેન્ટ માટે હોલ બુક કરીએ એટલે કલાક પછી કે 15 મિનિટમાં અહીંના ધારાસભ્ય અને સાંસદ સભ્યના ગુંડાઓનો એને ફોન જાય અને એમ કહી દે કે ધંધો કરવાનો છે કે પછી આમ આદમી પાર્ટીને સપોર્ટ કરવાનો. 13 જગ્યાએ આ ભાજપના અહીંના તમારા શહેરના ધારાસભ્ય કે સાંસદ સભ્યોએ ગુંડાઓ મોકલીને 13 હોલ કેન્સલ કરાવ્યા અને 14મો આ હોલ નવનીત કાકાએ ભાડે આપ્યો. તો હું નવનીત કાકાને વિનંતી કરીશ કે સ્ટેજ ઉપર એક વખત પધારે અને કાલે રાત્રે માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજી નવનીત કાકાનું સન્માન અને સ્વાગત કરશે. આપણે એમના ખૂબ ખૂબ તાળીઓથી વધાવીએ નવનીત કાકાના સન્માનને. ગઈકાલે રાત્રે નવનીત કાકાના ઘરે અહીંના સાંસદ સભ્ય ગયા અને એમણે નવનીત કાકાને આ 70-80 વર્ષના વડીલને ધમકાવવાની કોશિશ કરી કે તમે કેજરીવાલની સભા માટે આ હોલ ભાડે ન આપો. બુકે નીચે લઈ લો બુકે. તો નવનીત કાકાના ઘરે ગઈકાલે રાત્રે અહીંના સાંસદ ગયા. સાંસદે એમ કીધું કે કાકા તમે આ હોલ ભાડે ન આપો, જોઈએ એટલા રૂપિયા બોલો. કાકાએ એમ કીધું હું થોડો કોંગ્રેસનો MLA છું કે તમે જોઈએ એટલા રૂપિયા બોલો ને લઈ લેશો. કાકાએ કીધું કે કેજરીવાલજી દેશને, ભારતને નંબર 1 બનાવવાનું મિશન લઈને નીકળ્યા છે. બીજી રીતે તો હું મદદરૂપ નહીં થઈ શકું, પણ એક હોલ તો હું એને ભાડે આપીશ આ ભારતને નંબર 1 બનાવવાની લડાઈમાં. આખા ભાજપના તમામ ગુંડાઓ અડધા બેનરો ફાડતા હતા, અડધા ગુંડાઓ સોશિયલ મીડિયા પર કેજરીવાલજીને ગાળો આપતા હતા, અડધા ગુંડાઓ હોલ ભાડે ન મળે એના માટે કોશિશ કરતા હતા. પણ જ્યારે યુદ્ધ ધર્મ અને અધર્મ વચ્ચે હોય ને ત્યારે ધર્મની પક્ષે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હોય, ઈશ્વર હોય. અરવિંદ કેજરીવાલજી આમ આદમી પાર્ટી સાથે ઈશ્વર છે એને, એટલે એમણે કાકાને મોકલ્યા. અને એનાથી આગળ કાકાએ હમણાં એવી વાત કરી કે હોલ તો ભાડે આપ્યો છે, હવે પાર્ટીને જે કાંઈ મારાથી સગવડ થાય ની ડોનેશન આપવું છે. તો કાકા આમ આદમી પાર્ટીને ડોનેટ કરવાના છે. હું તો કહું છું 5 રૂપિયા આપે, પણ ઈમાનદારીથી કમાઈને આપેલા પૈસાની જે તાકાત છે ને એ ભ્રષ્ટાચારથી ભેગા કરેલા કરોડો રૂપિયામાં નથી. એ ભાજપ વાળાએ સમજવું પડશે. આજે આપણે શિક્ષણ ઉપર વાત કરવા માટે આવ્યા છીએ અને તમામ સ્કૂલ હોય, કોલેજ હોય, યુનિવર્સિટીઓ હોય, ત્યાં એક વાક્ય આપણે ભણતા આવ્યા છીએ કે સા વિદ્યા યા વિમુક્ત એ, કે જે વિદ્યા મુક્તિ અપાવે એ વિદ્યા, મુક્તિ અપાવે જ્ઞાન. આજે આપણે જ્ઞાન યુગમાં જીવીએ છીએ, એરા ઓફ નોલેજ.
આપણને એમ કહેવામાં આવે છે કે આ જ્ઞાનની દુનિયા છે, પણ જ્ઞાન લેવાનું ક્યાંથી છે? કઈ જગ્યાએ જ્ઞાન મળશે? સરકારી શાળાઓ તો બંધ કરી દીધી, પ્રાઇવેટ શાળામાં તો લાખો રૂપિયા ફી ભરીએ તો એડમિશન મળે, આરટીઈમાં માન એડમિશન મળ્યું હોય તો બાળકને અલગ બેસાડવામાં આવે. આપણે એરા ઓફ નોલેજ જ્ઞાન યુગમાં જીવીએ છીએ, પણ જ્ઞાન મેળવવાની વ્યવસ્થા નથી. અને સરકારમાં બેઠેલા લોકો આપણને વિશ્વગુરુના સપના બતાવે છે. કેવી રીતે વિશ્વગુરુ બનાશે? બાળક એટલે શિષ્ય, વિદ્યાર્થી એટલે શિષ્ય. શિષ્યને જો જ્ઞાન નહીં મળે તો દેશ વિશ્વગુરુ કેવી રીતે બનશે? એટલે આજે હવાઈ સપના બતાવવા વાળા ભાજપ વાળા લોકો છે, એના પેટમાં તેલ રેડાવવું સ્વાભાવિક છે. પણ ભારતને ખરેખર નંબર 1 બનાવવાનો વિચાર, એને કેવી રીતે નંબર 1 બનાવી શકાશે એની આખી બ્લુપ્રિન્ટ લઈને અરવિંદ કેજરીવાલજી ગુજરાતમાં આવ્યા છે ને એટલા માટે ભાજપ વાળા ડરે છે. દેશને નંબર 1 બનાવવા માટે જ્ઞાન જોઈશે, શિક્ષણ જોઈશે, શાળાઓ જોઈશે, શિક્ષકો જોઈશે. એ કોણ આપશે? આજે આપણે ગુજરાતની જો હાલત જોઈએ તો સરકારી શાળાઓ ખાડે ગઈ છે. સરકારી શિક્ષકો બચારા ભણાવવા સિવાયના બધા જ કામ સરકારી શિક્ષકોએ કરવાના. વસ્તી ગણતરી હોય, પશુ ગણતરી હોય, તીડ બગાડવાના હોય, ભાજપના કાર્યક્રમોમાં ભીડ ભેગી કરવાની હોય, શૌચાલય ગણતરી કરવાની હોય, નીલગાયોની ગણતરી કરવાની હોય, તમામ કામો એ શિક્ષકો પાસે કરાવવામાં આવે છે. ભાજપ એમ કહેવાય છે કે વિશ્વનું સૌથી મોટું સંગઠન છે, વિશ્વની સૌથી મોટી પાર્ટી છે. તમારા મફતિયા પાર્ટીના સંગઠનના માણસોને કહો ને ઢોર ગણતરી કરી આવે. શિક્ષકોને શું કામ સોંપો છો? શિક્ષકોને ભણાવવા દો. તમારા જે ઢોર જેવા સંગઠનના પદાધિકારીઓ છે એને ઢોર ગણવાનું કામ સોંપો, બેયને મજા આવશે. પણ શિક્ષકો પાસેથી શું કામ આવા કામ કરાવો છો? પણ આવું બધું કેમ થાય છે? શા માટે શિક્ષકને ભણાવવા સિવાયના કામ સોંપવામાં આવે છે? શા માટે શાળાઓ બંધ કરી દેવામાં આવે છે? શા માટે શિક્ષણનું ખાનગીકરણ કરવામાં આવે છે? એનો જવાબ છે કે ભાઈ કૂવામાં હોય તો અવેડામાં આવે, ગાંધીનગરમાં બેઠેલા જ અભણો હોય તો અવેડામાં શું આવવાનું છે? જ્યાં સરકાર અભણ માણસો ચલાવતા હોય તો એ ભણતરને તો ખાડે જ નાખવાના, જે પોતે ભણ્યા નથી. મને એક વખત એવું પૂછેલું કે ભાઈ તમે ચૂંટણી લડશો કે નહીં લડો? એનો મેં જવાબ આપ્યો કે ભાઈ 7 ચોપડા ને 8 ચોપડા ભણીને ગૃહમંત્રી બનીને ફરે છે, એના કરતાં હું વધુ ભણેલો છું તો હું તો ચૂંટણી લડીશ. સરકારમાં 8 ચોપડા ને 7 ચોપડા ને 10 ચોપડા ભણીને કેબિનેટ મંત્રી, નવા 4 જબ્બા સીવડાઈ લ્યો, દાદાગીરી ગુંડાગીરી કરો એટલે હાલી ગયું. આને બદલવા માટે અરવિંદ કેજરીવાલજી લડી રહ્યા છે. ભણેલો ગણેલો માણસ સરકારમાં લાવવા માટેની લડાઈ છે. અને એટલા માટે એમને ડર લાગે છે કે આરું બધા ભણેલા આવી જશે તો આપણું શું થાય? તમારી જગ્યા જેલમાં છે. તમે ભ્રષ્ટાચાર કર્યો છે, સ્કૂલોનું ખાનગીકરણ કર્યું છે. અને શિક્ષણ વિશે એટલી મોટી વાતો થઈ. એફઆરસી કમિટી બની, સ્કૂલ રેગ્યુલેશન, ફી રેગ્યુલેશનનો કાયદો આવ્યો, મોટી જાહેરાતો થઈ, આપણે બધાએ જોયું. એમ કહેવામાં આવ્યું કે ભાઈ હવે ખાનગી શાળાની ફીમાંથી મુક્તિ મળશે. અને થયું શું કે ફી રેગ્યુલેટરી કમિટીના માધ્યમથી ફી વધારવાનું ષડયંત્ર ચાલુ થઈ ગયું. પહેલા સ્કૂલ પોતાની રીતે ફી વધારતી હતી, હવે ફી રેગ્યુલેટરી કમિટીના માધ્યમથી ફી વધવા લાગી છે. તો જ્યારે આપણા દેશમાં સારું શિક્ષણ નહીં મળે, મફત શિક્ષણ નહીં મળે, ક્વોલિટી એજ્યુકેશન નહીં મળે, ત્યાં સુધી સમાજનો કે દેશનો સર્વાંગી વિકાસ કરવો એ જરાક મુશ્કેલ કામ છે. અને એક માણસને જો સારું શિક્ષણ મળે, મફત શિક્ષણ મળે, ક્વોલિટી વાળું શિક્ષણ મળે તો એનું પરિણામ શું આવે? સારામાં સારા શિક્ષણથી દેશની અંદર એક ક્રાંતિકારી નાયક પેદા થાય. સારા શિક્ષણનું પરિણામ શું આવે? આપણે વડોદરાની સંકલ્પ ભૂમિ ઉપરથી આપણને દાખલો મળે કે બાબા સાહેબ ઇંગ્લેન્ડથી ભણીને આવ્યા અને એમણે સંકલ્પ લીધો કે હવે આ દેશના કરોડો વંચિતો, ગરીબો, મજૂરો, મહિલાઓ, એમના માટે કંઈક કરવું છે. સારા શિક્ષણથી એક ક્રાંતિકારી પુરુષ ઉત્પન્ન થાય અને એ પુરુષના માધ્યમથી આખા દેશને એક નવી દિશા મળે. શિક્ષણ મળે તો આ બધું મળે, શિક્ષણ ન મળે તો શું થાય? ઓછું ભણેલા, ન ભણેલા માણસોની સંખ્યા વધે અને ચૂંટણીમાં એને ભોળવીને, છેતરીને, વોટ્સએપના મેસેજો ફોરવર્ડ કરી અને એની પાસેથી મત મેળવી શકે. એટલે ભાજપવાળા એવું ઈચ્છે છે કે ભણવું નહીં, ભણવા દેવું નહીં, અને ભણે અને આગળ વધવા દેવો નહીં, જેથી કરીને વોટ્સએપના મેસેજ વાંચીને મત આપ્યા કરે જનતા. અને અરવિંદ કેજરીવાલજી એમ ઈચ્છે છે કે બાળક લાઇબ્રેરીની અંદર પુસ્તક વાંચતો કરવો છે, દુનિયાભરનું જ્ઞાન એને લાઇબ્રેરીના માધ્યમથી મળે એવા સમાજનું નિર્માણ કરવું છે. અને સમાજનું આવું સક્ષમ નિર્માણ કરવાનો એમનો સંકલ્પ છે.
એટલે જ આ લોકો ભાજપવાળા લોકો છે એ ડરે છે અને હોલ કેન્સલ કરાવે છે. મારે એમને એટલી જ વિનંતી કરવી છે અહીંના સાંસદ સભ્ય ધારાસભ્યને, હોલ કેન્સલ કરાવે મેળ નહીં પડે, કેમ કે અરવિંદ કેજરીવાલજીને ગુજરાતની જનતાના દિલમાં સ્થાન મળી ગયું છે. હવે દિલમાંથી કેન્સલ નહીં કરાવી શકો. અરવિંદ કેજરીવાલજીની જે ગેરંટી છે ગુજરાતના લોકો માટે, દેશના લોકો માટે, કે એક એક બાળકને સારું શિક્ષણ આપવા માગે છે, એ લોકોના દિલની અંદર એ જગ્યા બનાવી ગઈ છે. એ જગ્યા ખાલી નહીં કરાવી શકો. તમે પાર્ટી પ્લોટના માલિકને ધમકાવી શકો, બાળકના વાલીને ન ધમકાવી શકો. જેને પોતાના બાળકને સારું શિક્ષણ અપાવવું છે એ વ્યક્તિ અરવિંદ કેજરીવાલનો સમર્થક છે. આજે આપણને વિશ્વગુરુનું સપનું બતાવવામાં આવે છે. એક વિચાર કરીએ કે છાશવારે સોશિયલ મીડિયામાં, વોટ્સએપમાં, છાપામાં આપણે એવા વિડીયો જોતા હોઈએ કે જેમાં છોકરાઓ પાણીની અંદર ચાલતા ભણવા જતા હોય, ટ્રકની અંદર લટકતા હોય, રિક્ષાની અંદર છોકરાઓ લટકતા હોય છે. જોયા છે કે નથી જોયા વિડીયો? બધાએ જોયા કે નહીં? એક આ દેશના એક બાળકે ભણવા માટે જો સંઘર્ષ કરવો પડે, જ્ઞાન મેળવવા માટે સંઘર્ષ કરવો પડે, તો બની ગયો વિશ્વગુરુ દેશ. જ્ઞાન આસાનીથી મળવું જોઈએ, સરળતાથી મળવું જોઈએ, સૌને મળવું જોઈએ અને શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન મળવું જોઈએ, એવો સંકલ્પ અરવિંદ કેજરીવાલજી લઈને આવ્યા છે. અને એટલા માટે આજે અરવિંદજી આપણા વચ્ચે ગુજરાતના વાલીઓ અને ગુજરાતના શિક્ષકોની સમસ્યાઓને સાંભળવા માટે અને એ સમસ્યાનું નિરાકરણ શું હોઈ શકે તે બાબતે સંવાદ કરવા આપણી વચ્ચે આવ્યા છે. હું ફરી એક વખત એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને સંવાદ કાર્યક્રમને આગળ વધારવા માટેની વિનંતી કરું છું. જય હિન્દ, જય જય ગરવી ગુજરાત. હવે ગોપાલભાઈને નમ્ર વિનંતી કરીશ કે જે નામ બોલશે એ ઊભા થઈ અને એનો જે પ્રશ્ન છે એ રજૂ કરશે. ગોપાલભાઈ. હલો, આપણે હવે આ શિક્ષકો સાથેના સંવાદ કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીએ છીએ. પહેલા ડી સિંઘ વિરમણીજી છે, જેઓ સમા વડોદરાથી આવેલા છે, વાલી છે, વાલી. એમને વિનંતી કરીશ પ્રશ્ન રજૂ કરે. બાકીના મિત્રો જરાક બેસી જાજો પ્લીઝ. Hello sir, heartiest welcome to CM of Delhi, Arvind Kejriwal ji. आज का बेसिकली आई एम फ्रॉम विजन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट रनिंग अ एनजीओ फॉर स्पेशल स्टूडेंट्स. आज भी हमारे गुजरात में 108 पढ़ने के प्रोविजन तो हैं स्पेशल बच्चों के लिए, बट उसमें से इम्प्लीमेंट एक भी नहीं हो रहा है. ये हमारा एक पहला प्रोविजन था. जैसा दिल्ली में तो आपके पास रिसोर्स रूम्स बने हैं स्कूल्स के अंदर, यहाँ पे ऐसा कोई इम्प्लीमेंटेशन उनके लिए नहीं है. मोर ओवर एक छोटा सा पार्ट और भी था, जैसे हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स हैं. NCERT textbooks have not been changed since last 23 years. They have the same content all around. तो ये कुछ provisions थे जो education system के अंदर थे. And moreover on a very sad part I would say that being a NGO, आज के टाइम पे हम promote कर रहे हैं होम स्कूलिंग. होम स्कूलिंग का मतलब ताकि स्कूल से पेरेंट्स का विश्वास इतना उठ गया है कि हम लोगों को आज होम स्कूलिंग की तरफ बच्चों को प्रेरित करना पड़े. It's better to go for homeschooling as the right part of education. Thanks you. થેન્ક યુ. એક વાલી છે એડવોકેટ કિશાલે પિલ્લાઈ, ચેરમેન છે વીપીએ એસોસિએશનના વાલી. Good afternoon, sir. Greetings from Vadodara Parent Association. Welcome to Sanskar Nagari, Vadodara. Actually, I would like to raise a very pathetic situation that the education is facing in Gujarat as an whole. There are two types of issues. One, with the less fortunate people who are forced to study in the government schools, where in spite of massive allocation for education, 34,840 crore rupees, in spite of such a massive allocation, the infrastructure is very bad. Dropout ratio, especially among the girl child, is very high. Now coming to the self-finance schools, the aims and objectives of Self-Finance School Regulation Act 2017 has been Self-Finance School Regulation Act 2017 has been very badly defeated. Yesterday we met the Honorable Chief Minister of Gujarat, and we met his Honorable Secretary, and we submitted a memorandum requesting him to consider the amendments in the act. So I would request your good self to throw light on some of the amendments that we have sought from the Honorable Chief Minister of Gujarat.
namely to fix an upper limit for the self-financed schools. Now, when the cutoff was fixed, it was about 20,000 rupees. Now the schools are charging about 1.25 lakhs. So through an amendment, whether it be possible if your government comes to fix an upper limit for the school fees, to give a representation of parents in the FRC committee at local levels, a small but not a very high demand to appoint at least a DU in Sanskar Nagari. We don't have a DU for the last 1 year in Sanskar Nagari. We are working on a makeshift DU. And to discuss with the legal luminaries and find out other avenues as per the provision of the Act to make suitable amendments so that the objectives of the Act is achieved, sir. Thank you for your patient hearing. થેન્ક યુ સો મચ પિલાઈ સાહેબ. ઋષિજન રવિન્દ્રભાઈ ચંદુભાઈ આજવા રોડથી છે. ઋષિજન પેરેન્ટ છે? ક્યાં છે? એમના પછી નીતિનભાઈ પટેલ છે માંજલપુરથી. नमस्कार अरविंद जी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके. एक आपने बहुत ही अच्छी तरह से एक बहुत ही मिशन चला है एजुकेशन के लिए, लेकिन मेरी एक दिल में एक बात है कि आप एजुकेशन की बात तो करते हो, एजुकेशन के अंदर प्राइमरी, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक की बात होती है, लेकिन गुजरात की एक पॉलिसी है एडमिशन कमेटी की, जो पॉलिसी बहुत ही खतरनाक पॉलिसी है. ऐसी पॉलिसी है कि यहाँ के जो बच्चे हैं 12 साइंस के बाद एडमिशन कमेटी के अंदर एपी जो एग्रीकल्चर के लिए जाना है, फिर अपने को बायोलॉजी ग्रुप में जाना है, तो ऐसी कमेटी चलती है. ये कमेटी के अंदर कम से कम जो शहर के बच्चे बच्चियां हैं उनको कहीं और शहर में जाना पड़ता है पढ़ने के लिए. तो इन लोगों के लिए क्या किया जाए कि आज कम से कम बहुत ही बड़ी बात यह है कि एडमिशन के कमेटी की प्रोसीजर से जो शहर के बच्चे वो शहर में नहीं पढ़ पाते हैं. इसके लिए जो इनके माँ बाप के जो पैसे का खर्च है वो ज्यादा बढ़ जाता है कि इसकी हॉस्टल की चार्ज बढ़ जाती है, इसका रहने का खर्चा बढ़ जाता है, फिर इसकी जो ट्रैवलिंग का खर्चा बढ़ जाता है. जो फीस है इससे बेहतर ये फीस इसको मार डालती है. और दूसरी चीज ये है कि एजुकेशन के लिए अंदर जो आफ्टर 12 पास करके जो एमबीबीएस के लिए जो गुजरात के बच्चे जो पढ़ाई के लिए अदर कंट्री में जाते हैं, जो अदर कंट्री में जाते क्यों जाते हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के एमबीबीएस के लिए कम से कम पारुल, दूसरी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है कि जहां 60 लाख से लेके 1 करोड़ रुपया तक फीस है. जो गरीब बच्चा कोई इतना सारा पैसा भर के पढ़ नहीं पा रहा है और वो बच्चा कम से कम दूसरी कंट्री में जाना पड़ता है. आज हमने देखा कि यूक्रेन के अंदर बहुत सारे बच्चे एमबीबीएस करने के लिए गए, लेकिन वो यहां आ गए युद्ध के लिए, तो इनके लिए ये सरकार ने कुछ नहीं किया कि ये बच्चों का क्या भविष्य होगा. तो इसके लिए ऐसा भी होना चाहिए कि कम से कम जो बाहर के बच्चे हैं, तो जो बाहर की जो फीस अपनी भारत की कमानी है वो बाहर के देश में जाती है, तो इससे बेहतर कि यहाँ की कमानी अपने देश में रहे और ऐसे कम पैसों के अंदर अपना बच्चा एमबीबीएस करके जो इसकी ख्वाहिश है वो पूरी कर सके. और अच्छा से हेल्थ की आप बात करते हो तो हेल्थ की बात में ये भी है कि अपना इंडिया का बच्चा इंडिया का ही पब्लिक की अच्छी तरह से सेवा कर सके. ये मेरा एक ड्रीम्स है. बहुत बहुत शुक्रिया सर. નીતિનભાઈ પારેખ અને બધાને વિનંતી શોર્ટમાં વાત રાખજો એટલે વધુ લોકોની વાત આવરી શકાય. નીતિનભાઈ પટેલ માંજલપુરથી છે. મોનિકભાઈ પરીખ સયાજીગંજથી. માનનીય કેજરીવાલ સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર. વડોદરામાં જે આ મુલાકાત કરી અને આવી ટફ પોઝિશનમાં આવી અને આપણને બધાને જે લાભ આપ્યો હોય તે બદલ એનો ખૂબ આભાર. મારો એક પ્રશ્ન એ છે. હિન્દી બોલજો. હા, નીતિનભાઈ પારેખ બોલું છું, માંજલપુર. કેજરીવાલ સાહેબ, મારો એક પ્રશ્ન એ છે કે નાના બચ્ચાઓ 2 વર્ષથી માંડીને 4 વર્ષ 5 વર્ષ સુધીના જે આપણે શિક્ષણની વાત કરે અને એડમિશન માટે જે આટલો બધો ખર્ચો કરી અને એને આપણે દબાણ આપીએ છીએ નાની ઉંમરમાં, તો એમ ન થઈ શકે કે 5 વર્ષ પછી જ એને એડમિશન મળે. 2 વર્ષના 3 વર્ષના 2.5 વર્ષના બાળકને તો હજી તેને રમવાની ઉંમર હોય, બચપણની ઉંમર હોય, ખેલકૂદની ઉંમર હોય. નૈસર્ગિક રીતે બાળકની ઉંમર 5 વર્ષ પછી જ એની થોડી પરિપક્વતા આવે. જે પરિપક્વતાની ઉંમરે જ આપણે એવા કાયદા ન ઘડી શકીએ કે આપણે 5 વર્ષ પછી જ એને એડમિશન લાગુ પડે. કે જેમ કે આપણે મત આપવાનો હોય તો 18 વર્ષની ઉંમરે મત આપી શકાય, મેરેજ કરવા હોય તો 21 વર્ષ પછી આપણે મેરેજ કરી શકાય. એવી રીતે શિક્ષણ માટે બાળકોને 5 વર્ષની મુદત ન આપી શકાય, 5 વર્ષ પછી જ એને એડમિશન મળે એવું કાંઈ થઈ શકે એવું હોય તો હું અપેક્ષા રાખું છું. થેન્ક યુ. મોનિકભાઈ પારેખ સયાજીગંજથી. हेलो हेलो, नमस्ते अरविंद केजरीवाल जी.
गांधी के गुजरात में शिक्षण नगरी, कला नगरी, संस्कारी नगरी वडोदरा में आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं मौनिक परीख वडोदरा। मुझे पता है कि दिल्ली एजुकेशन मॉडल में आपने देशभक्ति का सिलेबस ऐड किया है, तो क्या हम लोग सीनियर केजी से लेकर हायर एजुकेशन तक स्पिरिचुअल, ट्रैफिक सेंस और वैल्यू एडेड टॉपिक्स जो है उसको एज ए सब्जेक्ट ईच एंड एवरी क्लास के अंदर ऐड कर सकते हैं? इसके बारे में आपका क्या करना है? थैंक यू। शिक्षक છે કૃષ્ણકાંતભાઈ શાસ્ત્રી અકોટાથી। नमस्कार सर, मेरा नाम कीर्तिकांत शास्त्री है और मैं एक योग शिक्षक हूँ। सर, आज योग की हालत जैसे अभी के जो सरकारी स्कूल है और जो सरकारी अस्पताल है, सेम ऐसी हालत योग की और एक योग शिक्षक की है सर। अभी गुजरात में GSYB करके योग बोर्ड चल रहा है, वहाँ सर सिर्फ 1 महीने में योग टीचर बनाए जाते हैं और सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं, और जो सर 1 महीने में योग टीचर बनता वो कैसा टीचर होगा? तो इसके बारे में आप जरा गौर कीजिएगा। थैंक यू। पटियार रेखाबा अकोटाથી અટલાદરા। પટિયાર રેખાબા છે। नमस्कार सर, मैं स्पेशल चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं आउट ऑफ स्कूल, जो बच्चों को कभी पढ़ना भी अच्छा नहीं लगता है, वो बच्चों का हम सर्वे करते हैं, फिर उनको पढ़ाते हैं, स्कूल में लाते हैं। और ऐसे भी बच्चे हैं जो कूड़े में कचरा चुनते हैं और उनको हम पढ़ाते हैं, और ये काम मैं 2004 से कर रही हूँ। पर सर सतत सेवा में मैं दे रही हूँ 2004 से, पर अभी हमारी जो पर डे हमारी जो वेतन बोलते हैं या भी सेवा है 266 रुपीज ऑनली है। हम घर घर जाके पढ़ाते हैं। कोरोना काल में हमने घर घर जाके एक एक बच्चे को ढूंढ के पढ़ाया है। कोरोना काल में जब महामारी चल रही थी तब गवर्नमेंट ने हमारी सैलरी जो 8,000 थी वो डायरेक्ट 5,000 कर दी। इतना हमारा शोषण हो रहा है अभी भी, और हम ऐसे ही बोल रहे हैं कि भी समान काम समान वेतन और मिनिमम मिलना चाहिए। जो मजदूर का जो होता है, जो प्रवासी टीचर છે ને, प्रवासी टीचर हम स्पेशल टीचर है, स्पेशल टीचर आउट ऑफ स्कूल के जो बच्चे का जो शिक्षण देना है होता है वो हम देते हैं, जिसको पढ़ना ही नहीं है और हमको घर घर जाके हम पढ़ाते हैं। ठीक है। जिसकी पोजीशन ही नहीं कि पढ़ पाए तो हम घर जाते हैं, ढूंढते हैं कि ऐसे बच्चे कहाँ हैं और हम लेते हैं उनको। और कई बार तो हमें डांटा जाता है कि ऐसे बच्चों को आप पढ़ाते हो, ये क्या पढ़ेगा? तो मैं खुद वो बच्चे को पानी भी नहीं आता है उनके घर पे, मैं साला में ही उनको नहलाती हूँ, तैयार करती हूँ, और फिर ऐसे हमारे कई टीचर हैं और 2004 से काम कर रहे हैं। सर, अन्याय भी हो रहा है, शोषण भी हो रहा है, पर अब हद हो गई है। अब समान काम समान वेतन चाहिए। सब टीचरों की जो पगार बढ़ रही है हमें भी चाहिए। और जो गवर्नमेंट ग्रांट आती थी 3 साल से वो भी बंद हो गई कि बच्चे को हम स्टेशनरी हम दिला सके, वो भी बंद हो गई है। उसमें भी काप डाला गया है। वो भी हमसे हम वो जो बैग लेके देते थे, हम खरीद के देते थे, वो भी हमसे बस छीन लिया, वो भी अब उनका। तो ये शोषण ही हो रहा है और हमारी यही अर्ज है, आप अगर आपकी सरकार बनेगी आम आदमी की तो आप हमारे लिए क्या करोगे, ऐसे बच्चों के लिए आप क्या करने वाले हो, वो भी आप मुझे थैंक यू जरा आप जानकारी दो। तो घણા બધા સાથી મિત્રો એ પ્રશ્ન પૂછ્યા છે, કેટલાક નામ ખાલી હું બોલી લઉં છું। શ્રી કુમાર બી શર્માજી છે, એમણે પણ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે। પ્રમોદ કુમાર પરમાર છે, मनोज पंडित છે, આરકે યાદવજીને સર लिखा है समस्या तो बहुत है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। तो બધા જ મિત્રોએ પોતાની રજૂઆત સાહેબને કરી છે। પિયુષ કુમાર પંડિત છે, નથુભાઈ ચૌધરી છે, બધા મિત્રોએ જે સવાલ રજૂ કર્યો છે એ સાહેબના ધ્યાને મૂક્યો છે। આગળની વાત જીતુભાઈ રજૂ કરશે। હું માનનીય શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજીને નમ્ર વિનંતી કરું છું કે અહીંયા આવે અને આપના જે પ્રશ્ન છે એના નિરાકરણનો રસ્તો બતાવે। ધન્યવાદ। भारत माता की वंदे
क्या अद्भुत नज़ारा है। अभी 2 महीने बाद गुजरात में चुनाव होने वाले हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी लोगों के साथ बैठ के चर्चा कर रही है कि हम स्कूल कैसे सुधारेंगे, शिक्षा कैसे सुधारेंगे। मैं समझता हूं कि भारत की आज़ाद भारत के 75 साल में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि चुनाव के पहले कोई पॉलिटिकल पार्टी आके जनता के साथ ये चर्चा करे कि स्कूल कैसे सुधारेंगे, बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे। अभी तो मौका एक दूसरे को गाली देने का। आम आदमी पार्टी कांग्रेस को गाली दे, कांग्रेस बीजेपी को गाली दे, बीजेपी आम आदमी पार्टी को। हम लोग इन सारी चीज़ों से अलग हैं, हमें राजनीति नहीं आती करनी। मैं बार बार ये बोलता हूँ, गाली गलौज उनके जिम्मे, राजनीति उनके जिम्मे। मेरे को स्कूल बनाने आते हैं, स्कूल बनवाने हैं तो मेरे से बना लो, मेरे को बुला लो। मैं आपके बच्चों को रोजगार दे सकता हूं, रोजगार चाहिए तो मुझे बुला लो। राजनीति चाहिए तो उन लोगों को बुला लो, गुंडागर्दी चाहिए तो उन लोगों को बुला लो। ये इस तरह का माहौल पहली बार देश में देखने को मिला है कि किसानों के साथ संवाद हो रहा है, टीचर्स के साथ संवाद हो रहा है, पेरेंट्स के साथ संवाद हो रहा है। पहली बार ऐसे हो रहा है। और गुजरात के अंदर शिक्षा पे बड़ौदा में ये पहला संवाद हो रहा है। लेकिन मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस संवाद का जब हमने ऐलान किया कि हम शिक्षा पे संवाद करेंगे वडोदरा में, पिछले 4-5 दिन में 13 जगह हम लोगों ने बुकिंग करने की कोशिश की कि दिल्ली से केजरीवाल जी आ रहे हैं, हमारी टीम ने बुकिंग की, पेरेंट्स के, टीचर्स के साथ संवाद करेंगे। हमने एक जगह बुक की, इन्होंने उसके मालिक को फ़ोन करके धमका दिया, खबरदार जो केजरीवाल जी के लिए बुकिंग दी। दूसरी जगह बुकिंग की, उसको भी खबरदार। 13 जगह कैंसिल की। 14वीं जगह मैं नवनीत काका को प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत। वो सामने उधर बैठे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस देश के अंदर नवनीत काका जैसे लोग हैं, उन्होंने हमें हॉल दिया और उन 13 लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया। जब उनसे बात की, वो 13 लोग खूब गालियां दे रहे हैं उनकी पार्टी को। बोले इस तरह से धमकी देना ठीक नहीं है। बोला हम आपके साथ हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है, बहुत तंग करते हैं लोगों को। तो आज उन 13 लोगों का आशीर्वाद है, नवनीत काका का आशीर्वाद है कि हमारे पास ये हॉल है। ये लोग सोचते हैं ये देश इतना कमजोर है कि धमका देंगे तो यहाँ पे शिक्षा पे संवाद नहीं होगा। शिक्षा पे संवाद भी होगा। स्कूल भी अब गुजरात के ठीक होंगे, प्राइवेट स्कूल भी ठीक होंगे, सरकारी स्कूल भी ठीक होंगे, बच्चों का भविष्य भी बनेगा। ये रोक सके तो रोक लें। पिछले 7-8 साल में दिल्ली में हमने बहुत काम किए, लेकिन अगर कोई पूछे तो एक काम जिससे सबसे ज्यादा मुझे संतुष्टि मिलती है, और मुझे लगता है कि मरने के बाद जब मैं ऊपर जाऊंगा और भगवान मुझसे पूछेगा कि तूने पृथ्वी पे क्या किया, तो मैं भगवान को कहूंगा मैंने बच्चों के स्कूल ठीक कर दिए थे। सबसे बड़ा पुण्य का काम हम लोगों ने यही किया कि बच्चों के स्कूल ठीक कर दिए, बच्चों का भविष्य बना दिया हम लोगों ने। संतुष्टि होती है जब मरेंगे तो लगेगा कि हमारी जिंदगी कुछ काम आई इस पृथ्वी के ऊपर। जब हमारी सरकार बनी दिल्ली में, वहां भी यही हालत थी। जो अभी मैं सारे प्रश्न मैंने लिखे हैं, एक एक प्रश्न का जवाब दूंगा। यही हालत थी जो आज गुजरात के अंदर है। 2 तरह का सिस्टम था, एक गरीबों के लिए, एक अमीरों के लिए। अमीर भी नहीं कहूंगा, जिसके पास भी थोड़ा सा पैसा होता था। कई लोग तो अपना पेट काट के एक टाइम की रोटी कम खाते थे, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते थे कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर लेगा तो थोड़ा कुछ बन जाएगा बड़ा होके। सरकारी स्कूलों की इतनी बुरी हालत थी, बच्चे फेल होते थे, पढ़ाई होती नहीं थी, टीचर आते नहीं थे, बहुत बुरा हाल था सरकारी स्कूलों का।
लेकिन गरीब बेचारा कहाँ जाएगा? गरीब आदमी मजबूरी में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजता था, और फिर जब देखता था पढ़ाई नहीं हो रही तो थोड़े दिन में वो ड्रॉप आउट कहते हैं ना, बच्चों को निकाल लेता था। सोचता था थोड़ा सा दुकान पे मेरे साथ लगेगा, मेरे साथ काम करेगा, पैसे कमाएगा, स्कूल में तो कोई पढ़ाई नहीं हो रही। प्राइवेट स्कूल वाले भी खुश नहीं थे। अनाप शनाप फीस, अनाप शनाप जो मर्जी फीस बढ़ा देते हैं। लूट मचा रखी थी कई प्राइवेट स्कूल वालों ने। कभी लाइब्रेरी फीस, पिकनिक फीस, फलाना फीस, ढिमका फीस, डेवलपमेंट फीस, ये फीस वो फीस। एक बेचारा, कई लोग ऐसे जानता हूं मैं जिन लोगों ने तंग आके अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से नाम कटा दिया। पैसे नहीं दे सकते थे, पैसे नहीं थे। तो जब हमने दिल्ली में सरकार संभाली ये हालत थी। आज गुजरात में भी यही हालत है। आज 7 साल के बाद सरकारी स्कूलों को हमने इतना शानदार बना दिया, इतना शानदार बना दिया। आप लोगों ने तस्वीरें देखी होगी सरकारी स्कूलों की, दिल्ली के सरकारी, और सारे स्कूल। मेरे को भी एक आदमी मिला, मुझसे पूछ रहा था, कहते सर सारे ऐसे हो गए? हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि बहुत शानदार सरकारी स्कूल हैं, सारे हो गए कि कुछ हुए हैं? मैंने कहा सारे सरकारी स्कूल ऐसे हो गए। पर दिल्ली में एमसीडी के स्कूल हैं, नगर निगम के, वो बीजेपी के पास है, वो बहुत खराब हैं। एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं। अब इस बार दिल्ली की जनता हमें वोट देगी, एमसीडी के प्राइमरी स्कूल भी सुधारेंगे। लेकिन दिल्ली सरकार के जितने स्कूल हैं सारे शानदार हो गए। इसका सबसे, मैं अगर कहूं खड़ा होकर कि सारे स्कूल अच्छे हो गए, आप कहोगे केजरीवाल अपनी बड़ाई कर रहा है। 4 लाख बच्चों ने अपने नाम प्राइवेट स्कूल से कटवा के सरकारी स्कूल में भर्ती कराए हैं। 4 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से अपना नाम कटा के सरकारी स्कूल में। और बड़े अमीर लोगों ने, मैं एक क्लास में गया, मैंने बच्चों से पूछा आप में से कौन कौन बच्चा प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के आया है? 7-8 बच्चों ने हाथ खड़ा किया। मैंने एक बच्चे से पूछा कौन से स्कूल में पढ़ते थे, कौन से प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे? कहता सेंट कोलंबस। सेंट कोलंबस दिल्ली का सबसे बड़ा प्राइवेट स्कूल है। लाइन लगी पड़ी है वहां पे सेंट कोलंबस में एडमिशन कराने के लिए। बड़े बड़े लोगों की लाइन लगी हुई है, अमीर अमीर लोगों की। उस स्कूल का एक बच्चा नाम कटा के दिल्ली के सरकारी स्कूल में एडमिशन ले रहा है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? आजकल मैं अभी एक बड़ी मीटिंग की थी, 1100 बच्चे, हमारी 12वीं क्लास के 1100 बच्चों ने नीट के और आईआईटी के पेपर पास करे हैं। 1100 बच्चों ने। मैं आईआईटी से हूं, मैं आईआईटी से इंजीनियर हूं। जब मैं आईआईटी से इंजीनियर बना था, हिसार से, पूरे हिसार जिले से अकेला मेरा एडमिशन हुआ था एक बच्चे का उन दिनों में। आज मेरे दिल्ली के एक सरकारी स्कूल से 4-4 बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं वहां पे। और सबसे बड़ी खुशी ये है, जब मैं आईआईटी में गया, मेरे को मेरे देश ने बहुत कुछ दिया है, भारत ने मुझे बहुत कुछ दिया है, और मैं शुक्रगुजार हूं मेरे देश का। आज मैं जो कुछ हूं मेरे देश की वजह से हूं। मैंने एक कसम खाई थी कि जितनी अच्छी शिक्षा मुझे मिली है, ऐसी शिक्षा मैं कोशिश करूं कि इस देश के हर गरीब बच्चे को मिलनी चाहिए। आज मुझे बेहद खुशी है ये कहते हुए कि दिल्ली के एक बच्चे को मैंने वैसी शिक्षा मुहैया करा दी है। मैं जब बच्चों से, 1100 बच्चों से बात कर रहा था कि डॉक्टर और गरीबों के बच्चे, मैंने देखा एक सिक्योरिटी गार्ड का बच्चा खड़ा हुआ। उस सिक्योरिटी गार्ड का बच्चा अब आईआईटी में जा रहा है जहां मैं गया था। कहता है सर मैं आपके इंस्टीट्यूट में जा रहा हूं। उस सिक्योरिटी गार्ड 10,000 12,000 रुपए महीने कमाता है। उसका बच्चा आईआईटी में जा रहा है, उसकी रैंक आई 569। ऑल इंडिया जेई का जो पेपर होता है उसकी रैंक आई 569। मैं जब आईआईटी में गया था मेरी रैंक आई थी 563। मुझे लगा यार ये तो मेरे बराबर। आज दिल्ली के एक बच्चे को, गरीब से गरीब बच्चे को, रिक्शे वाले के बच्चे को, मजदूर के बच्चे को, सिक्योरिटी गार्ड के बच्चे को, प्लम्बर के बच्चे को, कारपेंटर के बच्चे को मेरे जैसी शिक्षा मिल रही है जैसी शिक्षा मुझे मिली, शानदार शिक्षा मुझे मिली। सरकारी स्कूल हमने बहुत शानदार कर दिए। अब आप सोच के देखो, वो सिक्योरिटी गार्ड का बच्चा, सिक्योरिटी गार्ड 10-12 हज़ार रुपए कमाता है, उसके घर का खर्चा नहीं चलता।
अब वो बच्चा आईआईटी में जाएगा, आईआईटी से जब निकलेगा तो उसकी तनख्वाह, स्टार्टिंग तनख्वाह उसकी 2-3 लाख रुपए महीना होगी। तो उसकी एक परिवार की तो गरीबी दूर हो गई कि नहीं हो गई? अगर हम अपने देश के सारे बच्चों को ऐसा पढ़ा दें, सारे देश की गरीबी दूर हो जाएगी, सारा देश अमीर हो जाएगा। मैं पूरी तरह से कन्विंस्ड हूं, एक चीज जो इस देश को गरीबी से हटा सकती है, देश जो गरीबी से दूर कर सकती है, वो है शिक्षा। अगर हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दें तो हमारा देश गरीब नहीं रहेगा, हमारा देश अमेरिका से भी ऊपर हो सकता है। दूसरा, प्राइवेट स्कूलों ने लूटमार मचा रखी थी। हमने आते ही सारे प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट करवा दिया। आपको जान के यहां नाम लेना ठीक नहीं है, देश के बड़े बड़े स्कूल, एक स्कूल उसका पता चला ऑडिट में 50 करोड़ रुपए के उसने फिक्स डिपॉजिट बैंक में करा रखे हैं। आप लोगों को लूट रहे हैं, फीस पे फीस बढ़ा रहे हैं, फलानी फीस ढिमके, और उसके एफडी कराते जा रहे हैं, एफडी कराते जा रहे हैं, उसका एफडी कराते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा गुनाह है। जो भी स्कूल होते हैं वो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, वो पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते, पैसा इकट्ठा करना गुनाह होता है उनके लिए। हमने इन सारे स्कूलों के एफडी तुड़वाए और सारे बच्चों को रिफंड कराई पुरानी फीस। मतलब पिछले 4-5 साल में जो उन्होंने फीस ली थी वो सारे पैसे हमने पेरेंट्स को वापस कराए। कभी नहीं हुआ भारत के इतिहास में कि आपके बैंक में स्कूल से पैसे वापस आए हों। और उसके बाद ऑर्डर जारी कर दिया कि कोई भी फीस सरकार की परमिशन के बिना नहीं बढ़ाई जाएगी। अगर आप फीस बढ़ाना चाहते हो आपको हमें बताना पड़ेगा। आप क्यों 7-8 साल से बहुत 2-4 स्कूल को छोड़ के किसी ने फीस नहीं बढ़ाई है, 7 साल से फीस नहीं बढ़ी है। गुजरात के अंदर भी यही करेंगे। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सरकारी स्कूल भी ठीक करने चाहिए, प्राइवेट स्कूल भी ठीक करने हैं। और वो नीयत केवल एक ही पार्टी की, आम आदमी पार्टी की, और ये कोई कुछ नहीं करने वाले। इन लोगों ने बुरी तरह से लूट मचा रखी है। तो अभी जो क्वेश्चंस आए, एक क्वेश्चन था कि स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन, जो हैंडीकैप बच्चे होते हैं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। सर, उनके लिए हम अलग से क्लासेस जरूर बनाएंगे, जो भी सुविधाएं देने की ज़रूरत है आप जैसे लोगों से मदद लेंगे। अकेले केजरीवाल या गोपाल इटालिया या ईशुदान गढ़वी या मनोज नहीं कर सकते। गुजरात की 6.5 करोड़ जनता को साथ लेके हम एक नया शिक्षा का पूरा सिस्टम तैयार करेंगे। एक ये हुआ कि एनसीईआरटी की बुक्स बड़ी पुरानी है। केवल एनसीईआरटी की बुक्स पुरानी नहीं है सर, हमारा पूरा का पूरा शिक्षा का सिस्टम जो हम पढ़ाते हैं बच्चों को, वो पूरा गड़बड़ है। ये हमने दिल्ली में, ये पूरा सिस्टम हमारा एजुकेशन का कहाँ से आया? अंग्रेज दे के गए थे। मैकॉले का सिस्टम है, 1830s 40s के अंदर, 1830 के दशक में ये सिस्टम बनाया गया था। अंग्रेजों ने सिस्टम क्यों बनाया था? ये अंग्रेजों ने सिस्टम बनाया था ताकि यहाँ पे क्लर्क पैदा होंगे जो कि अंग्रेजों की सेवा करेंगे। 1947 में हमारे देश से बहुत बड़ी गलती हुई। मैं सारे स्वतंत्रता सेनानियों की इज्जत करता हूं, लेकिन जब देश आजाद हुआ हमें पुराना अंग्रेजों का शिक्षा का सिस्टम खत्म करके आजाद भारत के लिए एक नया शिक्षा का सिस्टम बनाना चाहिए था। तो केवल इनसे दिल्ली के अंदर इस पे हम काम कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आज हमारा कोई भी बच्चा ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी ढूंढता फिरता है, नौकरी ढूंढता फिरता है। बीए करने के बाद, बीएससी करने के बाद, बीकॉम करने के बाद, एलएलबी करने के बाद नौकरी नौकरी नौकरी। हमें ऐसा सिस्टम चाहिए कि नौकरी ढूंढने वाले नहीं, हमें नौकरी देने वाले बच्चे तैयार करने हैं। दिल्ली के अंदर हमने शुरू किया है ये सिस्टम। 11वीं, और आपको सुन के बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, 11वीं और 12वीं के बच्चों को हम लोगों ने बिजनेस कराना सिखाना शुरू किया कि बिजनेस कैसे करते हैं। हमने बच्चों के दिमाग में कूट कूट के भर दिया कि जब कॉलेज से बाहर निकलोगे आपको नौकरी देने वाला बनना है, नौकरी मांगने वाला नहीं बनना। हर बच्चे को दिल्ली सरकार की तरफ से 11वीं और 12वीं में हम 2-2 हज़ार रुपए देते हैं। हम उन बच्चों को कहते हैं अब ये 2 हज़ार रुपए इससे बिजनेस करो। आपको लगेगा क्या बेवकूफ़ी है यार, ये 2 हज़ार रुपए से बिजनेस होता है क्या? उसमें बच्चों को फ्रीडम होता है। 4 बच्चे, 8 बच्चे, 10 बच्चे एक साथ मिलते हैं और टीम बनाते हैं, और टीम बना के जैसे 5 बच्चे मिले तो उनके 10,000 रुपये हो गए। उन्होंने 2-2 हज़ार रुपये पूल किए, 10,000 रुपये हो गए। अब वो 10,000 रुपये से बिजनेस करते हैं।
जैसे मैं एक आपको उदाहरण देता हूं, एक 5 बच्चों ने टीम बनाई और उन्होंने एक स्पेशल ड्रिंक बनाया कॉफी की तरह। कॉफी में कैफीन होती है, इसमें कैफीन नहीं थी, और उस ड्रिंक को उन्होंने फेसबुक पे व्हाट्सएप पे भेज भेज के मार्केटिंग की। 2.5 लाख रुपए की ड्रिंक बेच ली है बच्चों ने। 10,000 रुपए से 2.5 लाख रुपए की ड्रिंक बेच ली। अब ऐसी 11वीं और 12वीं क्लास के दिल्ली सरकार के बच्चों की 52,000 टीम्स बन चुकी हैं। 52,000 टीम्स, उसमें कोई 3 बच्चों की टीम, कोई 4 बच्चों की टीम, कोई 5 बच्चों की, कोई 2 बच्चों की टीम। 52,000 टीम्स इस टाइम बिजनेस पे काम कर रही हैं। फिर हमने इस देश के अमीर लोगों को बुलाया और इन बच्चों को कहा उनके सामने प्रेजेंटेशन करो और उनसे इन्वेस्टमेंट मांगो। तो जैसे ये वाली टीम थी, ड्रिंक वाली टीम, इन्होंने एक अमीर आदमी के सामने प्रेजेंटेशन किया। बहुत अमीर अरबपति आदमी है। सोचो, दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल के रिक्शे वाले के बच्चे, प्लम्बर के बच्चे, एक अरबपति 11वीं 12वीं के बच्चे अरबपति के सामने प्रेजेंटेशन कर रहे हैं अंग्रेजी में। सोच सकते हैं आप। और उनके सामने प्रेजेंटेशन किया। उस आदमी ने 19 लाख रुपए इन्वेस्ट किए इनकी टीम के अंदर। 19 लाख रुपए दे के गया वो कि मैं आपके अंदर इन्वेस्ट करता हूं, ये मेरी इक्विटी है, शेयर है ये मेरे। 19 लाख रुपए के। अब ये जितने बच्चे 12वीं क्लास से निकलेंगे, कॉलेज में जाएंगे, एक भी बच्चा नौकरी मांगने वाला नहीं बनेगा, नौकरी देने वाला बनेगा। ये बदलाव करने, हमारे बच्चे निकलते हैं कॉलेज से, स्कूल से, क्या हम उनको देशभक्ति सिखाते हैं स्कूलों के अंदर? नहीं सिखाते। क्या हम उन्हें अच्छा इंसान बनना सिखाते हैं स्कूलों में? नहीं सिखाते। ये अब हमने दिल्ली सरकार के स्कूलों में सिखाना चालू किया है। हैप्पीनेस क्लासेस चालू किए हैं, देशभक्ति क्लासेस चालू किए हैं, बिजनेस क्लासेस चालू किए हैं। ये पूरा कंटेंट बदल रहे हैं हम एजुकेशन की। बच्चों को सिखाया क्या जाना चाहिए? रटते रहते हैं, और इतनी टेंशन होती है बच्चों को। एक 10वीं क्लास का बच्चा मुझे मिला, अब तो 12वीं पास कर गया। कहता सर, जब मैं 10वीं क्लास में था मुझे बड़ी टेंशन रहती थी, मेरे नंबर बड़े खराब आते थे, मुझे लगता था यार मेरे को नौकरी नहीं मिलेगी, बड़ा हो गया, मैं बड़ी मुश्किल से पास होता था। कहते ये आपके 11वीं 12वीं क्लास में जब मैंने ये बिजनेस क्लासेस शुरू की, मेरी सारी टेंशन खत्म हो गई। मुझे लगा नंबर जो मर्जी आए, धंधा तो कर ही लूंगा मैं अपना बड़ा होके। तो एनसीईआरटी की बुक्स नहीं सर, पूरा कंटेंट बदलने की जरूरत है। ये सारा अंग्रेजों का शिक्षा का सिस्टम खत्म करके इस देश के अंदर एक भारतीय सिस्टम चालू करने की जरूरत है। शिक्षा का एक भारतीय सिस्टम होना चाहिए। एक में किसी ने पूछा कि सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब है, जबकि सरकार पता नहीं 30,000 34,000 करोड़ रुपया खर्च करती है। सर वो पैसा सारा कहाँ जाता है ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। ईमानदार सरकार लेके आइए, ये सारा पैसा आपके बच्चों के ऊपर खर्च होना चालू होगा। किसी ने कहा कि फीस बहुत ज़्यादा है, फीस कंट्रोल करेंगे। सर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, दिल्ली में किया है। दिल्ली में किसी से भी फ़ोन करके पूछ लीजिए आप, दिल्ली में सब प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस कंट्रोल की है। यहाँ पे भी किसी को फ़ीस नहीं बढ़ाने देंगे नाजायज़ तरीके से। वडोदरा में डीओ नहीं है कई दिनों से। वडोदरा नहीं, पूरे गुजरात के अंदर डीओ बनाएंगे, अच्छे से सारे ऑफिसर्स की नियुक्ति करेंगे, चिंता मत कीजिए। कॉमन एडमिशन कमेटी 12वीं क्लास के बाद, ये पूरा सिस्टम मुझे समझ नहीं आया। अभी ईशुदान भाई समझा तो रहे थे, गोपाल जी समझा रहे थे, ये मैं पूरा सिस्टम समझ के, लेकिन आपके साथ बैठ के जो भी इसको ठीक करने की ज़रूरत है इसको ठीक करेंगे। हमारे बच्चे दूसरे देशों में क्यों जाते हैं? बिल्कुल सही प्रश्न है। 75 साल हो गए आज़ाद हुए भारत को। 75 साल कम नहीं होते। हमारे देश में दुनिया के बेस्ट इंजीनियर हैं, बेस्ट डॉक्टर हैं, बेस्ट, फिर भी हमारा देश पीछे रह गया। आज हमारे बच्चे बताओ मेडिकल के लिए यूक्रेन जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, शर्म की बात है। हमारा देश वो देश है जहां नालंदा विश्वविद्यालय, प्राचीन भारत में नालंदा विश्व, पूरी दुनिया से बच्चे आया करते थे। आज हमारे देश को क्या हो गया? आज हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं। हमें ऐसा देश तैयार करना है कि पूरी दुनिया से बच्चे यहां पढ़ने के लिए आए, ना कि हमारे बच्चे वहां पढ़ने के लिए जाएं। किसी ने कहा कि ट्रैफिक सेंस वगैरह भी सिखाना चाहिए। ये सब हम दिल्ली में शुरू कर दिया है सर हमने।
हमने जो हैप्पीनेस क्लासेस हम करते हैं उसमें बच्चों को मॉरल वैल्यूज सिखाते हैं, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाते हैं, ट्रैफिक सेंस सिखाते हैं। योगा के बारे में किसी ने बात की। दिल्ली में हमने ये जो मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं केजरीवाल सब कुछ फ्री करता है, जनता के भले के लिए करता हूं। बताओ मैं कौन सा घर ले जाता हूं अपने पैसे? दिल्ली में हमने योगा की क्लासेस फ्री कर दी हैं। दिल्ली के हर पार्क में रोज सुबह और शाम को योगा की क्लासेस होती हैं, फ्री में होती हैं। हमने दिल्ली के योगा को टीचर्स को, खूब सारे योगा टीचर्स तैयार किए हमने, और वो योगा टीचर्स आते हैं। कोई भी व्यक्ति आके योगा में फ्री क्लासेस अटेंड कर सकता है, सीख सकता है, रोज योगा कर सकता है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए, फ्री योगा कराने की क्या गलत बात है? तो यहां पे भी योगा को बढ़ावा देंगे, गुजरात में भी देंगे। एक बहन ने कहा कि हम कूड़ा बीनने वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारी तनख्वाह भी कम है, हमारा सा। बहन, मैं आपको एक गारंटी दे के जा रहा हूं कि कूड़ा बीनने वाले बच्चे और आप दोनों को हम मेन स्कूलों के अंदर लेके आएंगे। अब कूड़ा बीनने वाले बच्चों को पार्ट टाइम एजुकेशन नहीं मिलेगी। आपको जान के एक ताज्जुब होगा, दिल्ली के अंदर हम एक स्पेशल स्कूल बना रहे हैं। आपने ट्रैफिक लाइट पे देखा होगा, जब आप गाड़ी रोकते हो और शीशा, कोई आता है एक बच्चा और टक 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 करता है, शीशा नीचे करते हो, एक भीख मांगने वाला बच्चा होता है। ये जितने बच्चे होते हैं, इनमें से बहुत सारे बच्चे स्मैक लेते हैं रात को, इनमें से बहुत सारे बच्चे गलत हरकतों में पड़ते हैं। इनके ऊपर कई सारी कोशिशें की गई, लेकिन ये बच्चे मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए। इनके लिए एक शानदार रेजिडेंशियल स्कूल दिल्ली के अंदर बना रहे हैं, जिसमें केवल और केवल इस तरह से सड़कों के ऊपर भीख मांगने वाले बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा और उन्हें इस देश के लिए मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की जाएगी। तो बहन को मैं कहना चाहता हूं, आपको मेन टीचर बनाएंगे, स्कूलों के अंदर मेन टीचर बनाएंगे। बहुत टीचरों की कमी है। मैं गुजरात का सारा डेटा स्टडी कर रहा था, कई हजार टीचरों की नियुक्ति करनी पड़ेगी, बहुत कमी है। आपको भी टीचर बनाएंगे और उन बच्चों को स्कूल में लेके आएंगे, उनको पार्ट टाइम एजुकेशन अब नहीं मिलेगी। ये सारे, मैं बताइए, अभी तक मैंने कोई राजनीति की बात करी? आपके बच्चों की, आपके बच्चों के भविष्य की बात करी मैंने, गुजरात के बच्चों के भविष्य की, देश के बच्चों के भविष्य की बात करी। मैं कौन सी गलत बात कर रहा हूं? और ये सारे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। कल कोई नेता कह रहा था केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल झूठा है, केजरीवाल फलाना, ये सारे इकट्ठे हो गए मेरे खिलाफ। सारी पार्टियों वाले एक ही भाषा, कांग्रेस वाले भी, बीजेपी वाले, सारे कह रहे हैं केजरीवाल फलाना है, केजरीवाल ढिमका है, केजरीवाल। मैं कह रहा हूं मैं आपके बच्चों के अच्छे स्कूल बना दूंगा। ये कहते हैं केजरीवाल ये है, ये लोग नहीं चाहते कि हमारे देश में अच्छी शिक्षा आए। इन्होंने 70 साल से यही राजनीति करी है, जनता को अनपढ़ रखो, जनता को गरीब रखो, ताकि वो इनका वोट बैंक बनी रहे। इसे खत्म करना है। मुझे वोट बैंक नहीं चाहिए, मुझे शिक्षित भारत चाहिए। मुझे वोट बैंक नहीं चाहिए, मुझे एक समृद्ध भारत चाहिए, शक्तिशाली भारत चाहिए। उसके लिए मैं काम कर रहा हूं। ये सारे मेरे पीछे इकट्ठे, सारे हाथ धो के मेरे पीछे पड़े हैं ये सारे, पर मुझे कोई परवाह नहीं है। दोस्तों, अंत में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी को लाओगे, आपके बच्चों का भविष्य बनेगा। हम आपके बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे। इनको वोट दोगे तो यही गुंडागर्दी चलती रहेगी, यही गंदी राजनीति चलती रहेगी, यही भ्रष्टाचार चलता रहेगा। हम लोग आम लोग हैं, आप ही की तरह हैं। 10 साल पहले तक इस देश में कोई नहीं जानता था कि केजरीवाल कौन है। एक आम सा आदमी, मैं भी आम जिंदगी जी रहा था। लेकिन चूंकि सब कुछ गड़बड़ था, हम अच्छे लोग नहीं आएंगे राजनीति में तो राजनीति कैसे ठीक होगी, इसीलिए हम आए थे। अन्ना जी कहते थे, मुझे याद है अन्ना जी कहते थे, केजरीवाल जी, अरविंद, ये कीचड़ है राजनीति। मैंने कहा अन्ना जी, कीचड़ में खुद ही उतरना पड़ेगा और खुद ही झाड़ू से इसकी सफाई करनी पड़ेगी। आप सब लोगों से निवेदन है, हमारे पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। ये लोग ईडी में, सीबीआई में रोज बुला बुला के, तुम्हारा पैसा कहां है? हमारा पैसा नवनीत काका है।
और जब तक नवनीत काका जैसे लोग इस देश के अंदर है तब तक ईमानदारी को इस देश से कोई नहीं हटा सकता दोस्तों। भारत